Greetings everyone, I am Madhav Shandar, a student of BTech here at Amrapali University. And today I'm here with the Dean of Hospitality Management at Amrapali University, Dr. S.K. Singh sir. Hello sir. Thank you, Madhav. As we all know that sir is extremely experienced in the hospitality management field. So today we will try to learn from his experience and get to know why one should pursue hospitality management. And as we all know, Amrapali University is known nationwide for its hospitality management programs. So we will get to know what differentiates Amrapali University from other universities. So sir, my first question to you would be that why should someone pursue hospitality management, and why one should pursue it from here at Amrapali? What makes it special? What makes the HM of Amrapali different from others? Thank you, Madhav, for this question. A wonderful question. I'll appreciate you for that. When a student joins any professional program after class 12, he has a lot of things in the mind. Most of the students, they are not clear within their thought process what should be pursued as a career. For me, a student should pursue a particular program as a career wherein his hobbies can land up to that level wherein the hobbies can lead him to new aspirations, and those aspirations can take him further towards a successful path. जब मैं बात करता हूँ कैरियर बनाने की या कैरियर का चयन करने की, तो अब आपने मुझसे पूछा कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्यों? देखिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर ना बहुत तरीके की मिथ्स हैं माधव। वो मिथ ये है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हमें इसलिए करना चाहिए कि हमें होटल्स में अच्छी जॉब मिलेगी या इंटरनेशनल होटल्स में अच्छी जॉब मिलेगी, या कई बच्चों में मिथ ये है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो होता है उससे वो एक सक्सेसफुल शेफ बन सकते हैं। कई बच्चों में ये होता है कि नहीं, इसमें हम क्रूज लाइन में जा सकते हैं। Whereas hospitality management is a program which gives you a wonderful blend of career. When I talk about wonderful blend of career, means the hospitality management opens the door for a particular aspirant worldwide to pursue a career in entire service segment. When I say service segment, a student need to understand it with detail. जब मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ तो हॉस्पिटैलिटी या होटल्स एक पार्ट है सर्विस का, टूरिज्म एक दूसरा पार्ट है सर्विस का, ट्रैवल तीसरा पार्ट हो जाता है, देन कस्टमर रिलेशनशिप एक और एस्पेक्ट आता है। तो जहाँ जहाँ कंज्यूमर या कस्टमर्स रहेंगे वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट का स्कोप रहता है। That's why we see कि not only in hotels, not only in resort, not only in clubs or in standalone restaurants, you will find hospitality students in entire service segment, be it be event management, be it be insurance sector, be it be retail sector, be it be any multinational company. So you will find the hotel management student in all these sectors. Even in banks, students are getting wonderful opportunities in banks also. So there are n number of reasons which can become a connecting dot for a student to pursue a career in hospitality. मेरे ख्याल से बच्चों को हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानना होगा और वो आज हम डिस्कस करेंगे। Sure, sir, definitely. So, sir, as you talked about myths, another myth that I would like to ask you is that many people think that hospitality is not that good for females. It is mostly a male-oriented field. So, what are your thoughts on that? Wonderful question again, Madhav. Yes, it is a prevailing myth that hospitality is not so good for female aspirants. Whereas, as to me, it is the best career choice for any female student. किसी भी लड़की के लिए हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बढ़िया उत्कृष्ट कैरियर का पाथ है, क्योंकि देखिए जो फीमेल्स हैं उनको हमारे ना इंडस्ट्री में शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती हैं, और हम मॉर्निंग शिफ्ट को स्ट्रेट शिफ्ट कहते हैं। तो ज़्यादातर फीमेल्स को स्ट्रेट शिफ्ट मिलती हैं, पहली चीज़। दूसरा, हॉस्पिटैलिटी को अगर आप देखेंगे या कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट या सर्विस सेक्टर को देखेंगे तो वहाँ पे सर्विलांस बहुत उत्कृष्ट लेवल का होता है, बहुत हायर लेवल का होता है। एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड थ्रू कैमरास। तो हर वर्क स्टेशन जो है, हर वर्क लोकेशन जो है वो कैमरा की परिधि में होता है, वहाँ पे वो कैमरे में उनको नोटिस किया जा रहा होता है। तो इससे बढ़िया सिक्योर एनवायरनमेंट कहाँ होगा जहाँ पे हर मूवमेंट को कैमरे में कैप्चर किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, एंड देयर आर पीपल वर्किंग इन दोज सेगमेंट्स। तो इसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं उनको स्ट्रेट शिफ्ट मिलती है, उनको पिक एंड ड्रॉप मिलता है, उनकी कंप्लेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाता है।
प्लस देखिए होटल मैनेजमेंट की या हॉस्पिटलिटी की जब बात होती है तो फीमेल में ना इनबॉर्न एक हॉस्पिटलिटी का नेचर होता है। Yes, तो वो उनका स्माइलिंग फेस, उनका सॉफ्ट स्पोकन होना उनके लिए ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है एज कम्पेयर टू ए मेल स्टूडेंट। तो फीमेल्स को जितने भी फीमेल्स, अब तो हॉस्पिटलिटी में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 40% वर्कफोर्स जो है वो फीमेल्स है, which is a big number. Yes, it used to be earlier when there used to be hardly 5 to 10% of females. But आज की डेट में 40, 45%, 50%, कई जगह पे तो और भी ज्यादा है। तो फीमेल्स का रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़ चुका है। फीमेल्स के लिए कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत जाती हैं। फीमेल्स को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत छोटे टेन्योर में, छोटे टर्म में ये कई अपॉर्चुनिटीज देता है ये फील्ड। Okay, so I would consider that this myth is busted now. So, and my another question would be that many people consider HM to be related to long shifts and a lot of work hours and not that good of a work environment. So, what are your thoughts on that? Is it true? देखिए, मैं इसे बिल्कुल नकारूंगा तो नहीं। काफी हद तक ये आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले या एक डिकेड पहले तक ये होता था, जब होटल मैनेजमेंट में बड़ी लंबी शिफ्ट होती थी। 8 घंटा 10 घंटा एक कॉमन शिफ्ट का टाइमिंग होता था। बट विद द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडस्ट्री, विद द चेंजिंग HR पॉलिसीज, पहले क्या होता था, पहले तो इवन जो ब्रेक होता था, मंथली ब्रेक, वो 1, 2 या 3 होते थे। अब तो कई होटल्स हैं जो कि 8 ब्रेक्स दे रहे हैं महीने में। शिफ्ट जो है स्ट्रेट 8 आवर्स की हो गई हैं, अब लॉन्ग आवर्स नहीं है। यस, ओकेजनल कभी हो सकता है व्हेन देयर इज अ big rush in hotel, the student might be asked, the people might stay for some long time, but they are compensated for that. But in general नहीं, ये अब आज की डेट में ये मिथ है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि बच्चा अपने पैशन को कैसे रिवाइव कर रहा है। इफ यू आर पैशनेट एंड फॉर योर ओन लर्निंग, अगर आपको ज्यादा रुकना भी पड़ता है, मेरे ख्याल से इसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है, इसमें फायदा है। Yes. तो अगर बच्चे को ये दिख रहा है कि नहीं, मेरा शिफ्ट टाइम खत्म हो गया, बट देयर इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, I'll suggest or I would recommend that student to stay back and learn more. Yes. Because early stages में अपने कैरियर के जितना आप सीखेंगे उतना उसे आप बाद में बोलते ना, जो बोओगे वो काटोगे। Yes. तो अब अर्ली स्टेजेस में आपने जैसा बुआई करी, जैसा नर्चर किया अपने कैरियर को, जितना ज्यादा स्किल्स को अपने अंदर इंग्रेज किया, इनकार किया, उतने ही बेटर आप परफॉर्म करेंगे, उतनी जल्दी आप फास्ट ग्रोथ लेंगे। तो अब तो नहीं है ये मिथ, पहले था, अब नहीं है। Okay. So we can consider that HM as a career has good work hours and is safe for both the genders equally, right? Certainly yes, no question at all. So, and now sir, coming to our university, Amrapali, we can say that for a good career and to become a better human being, apart from studies, a complete holistic development of a student is required. So, what apart from studies does Amrapali offer to a student? देखिए, we need to understand कि a student comes to a university to gain knowledge, Yes. not to gain information. Yes. Gone are those days जबकि क्लासरूम में टीचर खड़ा हो जाता था और अपने लेक्चर्स को डिलीवर करने लग जाता था। अब ऐसा नहीं है। Yes. अब स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। यानी एक क्लास को हम समझते हैं, एक क्लास में करीब 60 बच्चे होते हैं। 60 बच्चे डिफरेंट सबसेट्स हैं एक तरीके से, उनके डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनके डिफरेंट उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनके डिफरेंट IQ लेवल्स हैं। अब एक टीचर को अपनी क्लास को अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो आम्रपाली में हम कोलैबोरेशन पे बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। हम इन स्टूडेंट्स को मल्टीपल सब ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं बिगनिंग में ही, और हम ये देखते हैं कि क्लास वन वे ना हो, इट शुड बी पार्टिसिपेटरी इन नेचर। बच्चों को हम ग्रुप में एंगेजमेंट एक्टिविटीज देते हैं। प्रीरिक्विजिट लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है कि बच्चा जब भी किसी क्लास में आ रहा है उससे पहले उसको प्रीरिक्विजिट लर्निंग उसके पास होनी चाहिए, उसके लिए एक्टिविटीज होती हैं। देयर आर लाइक वी यूज एक्टिव लर्निंग पेडागॉजी। बेसिकली हम टीचर्स जो हैं वो एंट्री टिकट्स पे काम करते हैं, मतलब कुछ एक ऐसा एक प्रीरिक्विजिट नॉलेज के लिए कुछ ऐसा एक सब टॉपिक दिया जाता है, सब कंटेंट दिया जाता है बच्चे को, जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, जिसको बच्चा प्रैक्टिस करके आता है, और व्हेन ही एंटर्स इनटू द क्लासरूम उसको उसका जवाब देना होता है। मतलब आपने जब अगर उसका जवाब दे दिया तो आप उसे पढ़ के आए हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो उस जवाब को नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लास के लिए उस वक्त उपयोगी नहीं है,
वो ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो क्लासरूम उन्हीं बच्चों से चालू होता है जो वो एंट्री टिकट्स पे जवाब नहीं दे पाते हैं। अब ये जो बच्चे आते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, उनसे हम क्या करते हैं, उन्हें पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड पे लेके जाते हैं। वहां पे उन बच्चों से हम उस सवालों को दोबारा से उनके सामने रखते हैं और जो उनको समझ में आता है वहीं पे हम उसे, क्योंकि एक प्रॉब्लम सेट है वो, और ये प्रॉब्लम सेट ही बाकी बच्चों को भी और क्लैरिटी देता है। तो हम वहीं पे उन बच्चों को उन चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। वी एंगेज स्टूडेंट थ्रू क्वेरी रेजिंग। हमारा पर्पस ये होता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेरी रेज करे। जितनी ज्यादा क्वेरी रेज करेगा, मैंने बोला था एक नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है आजकल यूनिवर्सिटीज में। इन्फॉर्मेशन तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन तो गूगल से मिल जाएगी, चैट जीपीटी है, एआई का जमाना है, इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगा, जेमिनी से मिल जाएगा, क्लाउड से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज में कन्वर्ट कैसे होगी? नॉलेज में तब कन्वर्ट होगी जब हम स्किल सेट्स पे फोकस करेंगे कि हमारे इस क्लास सेशन में ये स्किल सेट जो है हर बच्चे में आने चाहिए। तो उसके लिए हम बच्चे को क्वेरी रेज करने का मौका देते हैं और उन क्वेरीज को टीचर जो है सॉल्व करता है, रिजॉल्व करता है। तो कहीं ना कहीं थॉरो एंगेजमेंट जो है वो क्लासरूम का रूप बदल देता है। So sir, apart from studies, what is the scene of the placement of students of HM here at Amrapali? देखिए, आपने अब पहले क्वेश्चन में जो बात करी थी वो उसमें कुछ अधूरी चीजें रह गई थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी थी। Yes, yes. तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले तो ये वर्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है। एक बच्चा एक डिग्री के लिए आता है, एक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी उसे 3 साल में या 4 साल में, जो भी उसका ड्यूरेशन है। Yes, sir. खाली डिग्री मिलने से क्या उसका करियर बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए, उसके अंदर स्किल सेट्स आने चाहिए, उसके अंदर बिहेवियरल स्किल्स आने चाहिए, उसके अंदर सोसाइटी रिलेटेड सोशल स्किल्स आने चाहिए, उसके अंदर मैंने जैसा बोला क्वेरी रेजिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कुछ पार्टिसिपेटरी नेचर उसका डेवलप होना चाहिए कि वो ग्रुप में काम कर सके। Yes, sir. तो हम आम्रपाली में फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हम बच्चे को मल्टीपल को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, उसके लिए हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि बच्चों के साथ हैंड्स ऑन स्किल सेट्स पे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। हम बच्चों को सर्टिफिकेशंस के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशंस करें। आज की डेट में सर्टिफिकेशंस बहुत अवेलेबल हैं। Yes. देयर आर वेरियस वेब सोर्सेज जहाँ से वो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट वर्कशॉप्स होती हैं उसमें हम बच्चों को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब बच्चा समाज के साथ जुड़ रहा है एक्टिविटीज में, जब बच्चा अपने पीयर्स के साथ जुड़ रहा है डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज में, जब बच्चा एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर कई अदर एबिलिटीज डेवलप कर रही होती हैं नॉलेज डोमेन के अलावा। Yes. उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज डेवलप होती हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की एबिलिटीज डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल सेट्स आते हैं उसके अंदर सोसाइटियल पार्टिसिपेशन उसके अंदर एनरिच होता है। जैसे एनएसएस है, एनसीसी विंग्स है हमारी, वहां पे जाके बच्चे काम करते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं। तो उनको अपना ये पता लग जाता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा जो पार्टिसिपेशन है खाली अपने जॉब तक सीमित नहीं रहेगा, मेरा अपने सोसाइटी के लिए भी पार्टिसिपेशन होगा, मेरा अपनी फैमिली के लिए भी एक दायित्व होगा, मेरे अपने सराउंडिंग पीपल्स के लिए भी, जो भी भीड़ है मेरे साथ अलग बगल में मेरा समाज है उसके साथ भी पार्टिसिपेट करने का भी मेरा एक नेचर होना चाहिए और मेरे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। Yes, sir. अब आपका जो अभी आपने सवाल पूछा था Yes. कि क्या आप दोहराएंगे उस सवाल को एक बार फिर से? Yes, sir. My question was that how are the placements here at hospitality management? देखिए, आम्रपाली के बारे में अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि आम्रपाली में जिसने एडमिशन ले लिया उसको प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा, ये कहा जाता है। Yes. तो बात प्लेसमेंट की नहीं है, हम और इस बात को मैं बिल्कुल सही मानूंगा कि हमारे यहाँ जिसने एडमिशन लिया उसको प्लेसमेंट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। बात ये कि प्लेसमेंट का कौन सा लेवल होगा। किसी भी सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या सर्विस सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो प्लेसमेंट के मल्टीपल लेवल होते हैं। एंट्री लेवल होता है, सुपरवाइजरी लेवल होता है, मैनेजरियल लेवल होता है, लीडरशिप लेवल रोल्स होते हैं। तो जब हमारे यहाँ बच्चा आता है तो हम डे 1 से हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनको जैसे मैंने बोला मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं ताकि हम जान सकें कि बच्चे का ट्रेनिंग नीड क्या है, उनको कहाँ कहाँ पर हमें ट्रेन करना है। तो हर बच्चा जो आ रहा है वो एंट्री लेवल के लिए तैयार हो ही रहा है। हमारा टारगेट रहता है कि वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल के लिए तैयार हो। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल के लिए तैयार करने के लिए उसको हमें उस तरीके के एक्सपोजर देते हैं, उसको चैलेंजेस देते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट्स देते हैं, उसको हम वेरियस हैकाथॉन में
हम उसको वेरियस इंटर इंस्टीट्यूट, इंटर यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं वर्ल्ड वाइड। इवन वर्ल्ड वाइड अगर बच्चा नहीं जा पाता है तो नेशनल लेवल पर तो हमारा हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो उसकी वजह से वो डिफरेंट लेवल्स के प्लेसमेंट के लिए तैयार होता है। आमपाली में अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चा 5 स्टार होटल्स में तो जाते ही जाता है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटरव्यूज होते हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशनल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज होते हैं, हमारे यहाँ एंट्री लेवल के इंटरव्यूज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एलाइड सेगमेंट के इंटरव्यूज होते हैं। हमने इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के लिए और इंटर्नशिप के लिए टाई अप किया हुआ है कुछ कंसल्टेंट्स के साथ में, कुछ कंपनीज के साथ में। तो हम बच्चों के लिए इंटरनेशनल प्लेसमेंट और इंटरनेशनल इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज और डोर्स ओपन हो चुकी हैं। बच्चा डायरेक्टली जा सकता है, अप्रोच कर सकता है, हमारे यहाँ से उनको इंटरव्यू के ऑप्शंस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब आमपाली की अगर हम एलुमनाई बेस को देखेंगे तो आमपाली का मेरे ख्याल से 70% एलुमनाई तो अब्रॉड में, एंड दे आर एट रिनोन्ड प्रॉपर्टीज एंड एट सीनियर लेवल्स। तो ये एलुमनाई का इतना स्ट्रांग बेस होना भी अपने आप में प्लेसमेंट के कई रास्ते खोलता है। कई जगह तो और वो हास्यप्रद भी लगता है कि जहाँ पे जब मैं एलुमनाई से बात करता हूँ तो बोलता है सर मुझे हमें सिर्फ अपना नाम बता दीजिए किस बच्चे का है, यहाँ पे बच्चे के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, बच्चे को हम डायरेक्टली प्लेसमेंट दिलाएंगे। कि आमपाली का इतना स्ट्रांग होल्ड है हमारे प्रॉपर्टी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारे आमपाली के नाम से ही हम बच्चे को प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे। तो इवन एलुमनाइज के साथ जब बच्चा इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए नए आयाम खुलते हैं, नए डोर्स ओपन होते हैं और वो बहुत आगे कामयाब होता है। So, sir, just like you said just now, we have alumni at international hotels and 5-star hotels. So, what do you think that a student, as a fresher or as still a student, should do to follow on their footsteps and go where they have went? Look, सबसे पहले तो आप किसी प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, you should be passionate about it. अगर आप में पैशन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। When I say पैशन मतलब कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कामयाब होना है, और आपने अपने सामने एक बेंचमार्क रखा है कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर 5-star होटल इन अनदर 10 years, और आई एम गोइंग टू बी अ जनरल मैनेजर ऑफ अ होटल इन अनदर 7 years, और आई एम गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिव स्टाफ इन अनदर 7 years, और आई एम गोइंग टू बी अ एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर और F&B service director or director operations or something like that, or I am going to be a wonderful consumer relationship officer or director consumer relationship or customer relationship in any allied service sector. तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो स्किल सेट्स हैं, उन स्किल सेट्स को अपने अंदर लाना होगा। लाने के लिए आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो भूख होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम हर दिन, मेरा हर नया दिन मुझे नया अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, और हर नए अपॉर्चुनिटी को मुझे कहीं ना कहीं एनकैश करना है। और मेरी जो प्रोफाइल जो डे 1 में है और जो 3 साल बाद होगी, उसमें ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए। तो आपके प्रोफाइल में कैसे चेंज आएगा? जब आप मल्टीपल सर्टिफिकेशंस कर रहे होंगे, जब आप लर्निंग के साथ साथ मल्टीपल पार्टिसिपेशंस कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पैशन ड्रिवन बनाती है। आपको रोज हर दिन नई अपॉर्चुनिटी तभी दिखेगी जब आप पैशनेट होंगे। जब पैशनेट नहीं होंगे तो आपके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो 6 घंटे और अटेंडेंस तक सीमित रह जाएगी। 6 घंटे और अटेंडेंस अगर सीमित रह रही है यूनिवर्सिटी आपके लिए, तो आप पैशनेट नहीं है। Beyond 6 hours, if you are engaged with your learning, beyond 6 hours, if you are engaged with certifications, in participations, certainly I can say then the student is passionate about it. And those who are passionate, nobody can stop them to be successful in this world. So, sir, my another question would be that many students are still not sure that they should pursue hotel management or not. So, according to you, what should a student think like before joining a course of hospitality? I would correct you, it is program of hospitality, Madhav. We have at Ampali, we have multiple programs of hospitality. For people who have done graduation, we recommend that they can go for a short-term program, which is diploma in hospitality operations. For people for students who have done class 12th or who have appeared in class 12th or cleared the class 12th examination, for them we have different undergraduate programs. Like we have bachelors in hospitality management, we have bachelors in hotel management and catering technology, and we have introduced a new program which is BSc in culinary arts. Now this new program BSc in culinary art is for those who want to aspire a career and want to be a successful chef in future. Those who want to take culinary as a career option,
for them this BSc in Culinary Arts is a wonderful option. अब इन प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट और स्पेशलाइजेशंस आते हैं, ठीक है। जैसे बीएससी इन कुलिनरी आर्ट्स की बात करता हूँ तो इसमें मैक्रो मेजर और माइनर डिग्रीज हैं। मेजर कुलिनरी आर्ट्स की है, माइनर में न्यूट्रिशन भी है, माइनर में ट्रेवल भी है, तो माइनर में कई ऑप्शन है, मार्केटिंग में माइनर में ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चा एक मेजर और एक माइनर दो ले सकता है, तो उसके लिए दो कैरियर पाथ ओपन हो जाते हैं। ये बच्चे को, जो भी बच्चा कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्राम ले रहा है, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसकी जर्नी आज से शुरू हो रही है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन होना है वो 3 साल बाद होना है। तो 3 साल बाद क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जब हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, जब मैंने बोला कि हॉस्पिटलिटी में वेरियस एवेन्यूज हैं, तो जब तक इंसान ट्रेवल कर रहा है, जब तक इस वर्ल्ड में बिजनेस है, जब तक इस वर्ल्ड में कस्टमर रिलेशनशिप है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की डिमांड रहेगी। ये डिमांड ऐसी नहीं है कि एआई के आने से डिमांड बदल जाएगी, एआई के आने से डिमांड का स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन डिमांड बढ़ेगी। तो इस इंडस्ट्री में बच्चे को एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि जॉब्स की कमी नहीं होने वाली है, जॉब्स बहुत होंगी। कैरियर एवेन्यूज, कई तरीके के नए कैरियर एवेन्यूज और ओपन होंगे, क्योंकि टूरिज्म के का भी प्रारूप बदल रहा है। टूरिज्म नए से तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, नए एवेन्यूज टूरिज्म के आ रहे हैं बच्चे के पास में। तो ये सारी चीजें क्या है, मल्टीपल नए जॉब स्किल सेट्स को लेकर आएगी। तो आने वाले 3 साल में कई और जॉब के स्किल सेट्स ओपन होंगे बच्चे के लिए। वो बच्चा जब वो स्किल सेट्स को लेगा, तो मेरे ख्याल से जॉब्स की तो कोई कहीं से कहीं तक कोई कमी होने वाली नहीं है। तो जो भी बच्चा अगर 12th के बाद हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आना चाहता है, या अभी डिसाइसिव नहीं है, डिसीजन नहीं ले रखा है, उसके लिए ये मान के चलना पड़ेगा, अगर उसको किसी से बात करना अच्छा लगता है, उसे घूमना अच्छा लगता है, वो अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करना चाहता है, तो हॉस्पिटलिटी से बेहतर किया। सारे एवेन्यूज हैं, आपको बस डे 1 में एडमिशन लेना और अपने पासपोर्ट की तैयारी कर देनी है। तो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर सच स्टूडेंट्स एंड दे विल हैव वंडरफुल कैरियर। Okay, sir. So, sir, that means that HM is one of the best careers for anyone basically that is interested in traveling and is a social person, likes to interact with people. Look, I would say for those who are passionate about traveling, for those who are passionate about learning new skill set related to personality, for those who want to talk to people, for those who want to have hands-on skill, and for those who want to be entrepreneur in future. In Uttarakhand, we will have wonderful opportunities of new entrepreneurship coming in different zones, because अभी तो टूरिज्म बढ़ रहा है उत्तराखंड में, नए स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं, नए टूरिज्म सर्किट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंटरप्रेन्योरशिप की भी। तो ऐसे लोग जिनको इन चीजों की भूख है, उनके लिए यस, हॉस्पिटलिटी सर्टेनली इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल कैरियर चॉइस, बट with dedication, with sincerity, and with participation. So yes, so I'm pretty sure that a lot of people would have been thinking that hospitality is limited to just cooking and chef-related things, and I'm sure that they would have been open much more due to this interaction today. I hope so, but in case they have any queries, they can drop us a message. Yes. In this podcast, or they can talk to us directly. Yes, sir. So that they can have clarity. देखिए, कैरियर की बात है, आप एक अपने कैरियर के लिए चॉइस बना रहे हैं, किसी के कहने पे नहीं होता ये, आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको एवेन्यूज को देखना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफाइल के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, आपकी जो स्किल सेट्स हैं उनके साथ एक मिक्स तैयार करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन इज गोइंग टू बी अ राइट फिट फॉर यू और नॉट। इन केस you have doubts in your mind, please talk to us, please drop us a message, we'll get back to you, we'll love to clarify your doubts so that you take a decision which is very well thought of, and there's no regret left in your life. You just admire and you just progress in your life. That's what one should look forward to. Definitely. So, sir, if one is thinking of joining Amrapali University, are there any scholarships or something that Amrapali offers? देखिए, हम जिस बेल्ट में हैं, we understand that the parents are not so economically sound. Yes. And looking at it, we are thankful to our management. उन्होंने कई तरीके की स्कॉलरशिप्स रखी हैं. There is a Amrapali University's scholarship entrance test also, which students can appear for, wherein one can have
have a scholarship worth 100% also. पूरी ट्यूशन फी उनकी फ्री हो सकती है. Then there are multiple slabs of scholarship. Then for female students we have female scholarship. For students of Uttarakhand we have 25% state scholarship. 25% तो सीधा उनको स्कॉलरशिप में छूट मिलती है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को. जो हमारा ऑल इंडिया की फीस है उसमें उनको 25% का रिबेट मिल जाता है, एक तरीके से स्कॉलरशिप मिल जाती है. आर्म फोर्सेस के पर्सनल के बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप है हमारे पास. हमारे पास जो हमारे पुलिस फोर्स के लोग हैं उनके बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप है. हमारे पास जो वीक स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंशियली वीक, जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, इकोनॉमिकली वीक फिजिकल सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलग स्कॉलरशिप्स हैं. तो देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज. देखिए, हम मान के चलते हैं अमरवाली यूनिवर्सिटी में कि पैसे की वजह से आपका कैरियर रेवेन्यूज नहीं रुकने चाहिए. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ यू आर वेरी गुड एट स्टडीज, please come to us. We will pave a path for you. We'll create opportunities. We'll look into it, how we can support you financially. And then we have we have tied up with banks also. Student can go for education loan also. बहुत सिंपल हो गया आजकल एजुकेशन लोन. तो बच्चा एजुकेशन लोन ले सकता है उसके थ्रू भी अपने. तो फीस इज नॉट ए हिंड्रेंस. अब तो गवर्नमेंट की भी कई स्कीम्स हैं जिनका फायदा उठा सकता है बच्चा. तो मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप तो है, बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं. So I think that is a really great initiative by Amrapali, offering these scholarships and all. So sir, I'm pretty sure that this interaction today busted a lot of myths and a lot of confusions that many students would be having related to hospitality management. So I would really like to thank you for giving me your time today and for answering all these questions for us. मतलब thank you for this interaction. मैं बस बच्चों से यही कहना चाहूँगा लास्ट में, अगर आप में जुनून है, जज्बा है और कुछ करने की चाह है, तो बस आम्रपाली की तरफ कदम बढ़ाइए. हम आपका हाथ पकड़ के आपको सफलता की उन राहों पे लेके अवश्य जाएंगे. हम आपको कामयाब बनाएंगे. आपके माता पिता के सपनों को हम सजीव करेंगे. और हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं, we won't be leaving any stone unturned. We will be taking 100% responsibility to shape you, your career and make you successful. नमस्कार.